Yes, good afternoon to all. Good afternoon, sir. Yes. So before we start with the data frame, just to revise what we have covered yesterday. So this is about the series. So there are three features of series. First is it consists of homogeneous data. This is size immutable, and the values of data mutable. So you can alter the values in the series. So this is we discussed about the series method. Series method consists of, just wait. Yes, I request everyone. Yes, Priyanshi, Muskan, please switch on your cameras. Okay. So in series method, we have these are the parameters: data, index, data type, and copy. So then we have these are the methods by which we can create the series from array, from dictionary, from a scalar value. This is first you have a empty series. These are the two series. On the left hand side you see that here you have default index and here you have your own index. You have entered the index like this. Okay, so you can mention specific index value also, and you can have default index values. Then this is the dictionary with, on the left hand side you can say in this dictionary the keys will become the index and the value will become the values of the series. Okay, and in the other example here you can see that these are the keys, these are the values, and we have specifically mentioned the index B, C, D, A. So B goes with the first value, C goes with the second value, and D, no, D is not matching with anyone. C is matched with this one, and ये क्या है कि basically इसमें keys ही हमारी रहेंगी. These keys will remain as the index value, but इसमें हमने क्या किया, इसका order change कर दिया index. ऐसे ही होगा वंशिका? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन को हम ट्राई कर लेते हैं like this. So we will try this question on the practical side also. In the meanwhile, move to the next point. Yes, yes, मुस्कान आप इसको एक्सप्लेन करना इस कोड को. Try to explain this code. सर इसमें हमने पहले pandas इंपोर्ट किया है spd1, उसके बाद numpy इंपोर्ट किया है np1, फिर हमने सीरीज का फंक्शन लगाया है और इंडेक्स वैल्यूज दे दी हैं, और जो हमने स्केलर वैल्यू दी है सर, जो 5 है जो वैल्यू वो सभी इंडेक्स को आ जाएगी, मतलब एक वैल्यू जो है 5 वो सभी इंडेक्स को आ जाएगी. ठीक है, this is how we basically create a series with a scalar value. And yesterday we have focused on the mathematical operations on the series. तो उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज वन पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो क्या पॉइंट है, जब भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं सीरीज. सो एनीवन हु वांट्स टू हाईलाइट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट while we are applying mathematical operations on the series?
Yes, Priyanshi. So Priyanshi is not. Yes, Muskan, आप बताओ. सर जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं सीरीज पर, वो इंडेक्स के बेसिस पे लगते हैं, जो कॉमन वैल्यूज होंगी उस पे ही मतलब मल्टीप्लाई इंडेक्स वैल्यूज के हिसाब से कॉमन जो होगा इंडेक्स उस पे लगेंगे. Yes. So yesterday we have implemented a question also. तो जिसमें हमने इस पॉइंट को हाईलाइट किया था, that is the index values are very very important while we are applying plus, multiplication, division, any sort of operation. And this is the implementation of the head function. So this is very easy. Head function, and then similarly you see the example of the tail function. And this is how to access the values of the series. And retrieve data using label as index. So you see here from index also you can fetch the specific value. ठीक है, तो इसमें हमने क्या पास ऑन किया है, इंडेक्स वैल्यू को पास ऑन किया. ठीक है जी. So retrieve data from selection. This is the index value. And let's leave this one and concentrate on the next data type, that is the data frame here. ठीक है. एक हमने अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन, that we have tried, that we will try to implement this question. कौन सा क्वेश्चन था अभी? Yes. So this was a question based on the dictionary. Yes. So let's try one of the question. So this is we have created a series from a dictionary and given the specific index value. Yes. So
यस, कौन इसको, यस हर्षिता एक्सप्लेन करोगे इसको, इस कोड को? So first we have imported pandas as PD, then we have created a dictionary, and after that we have created a series named S, in which we have also written the index values, and then we printed the series. Now the values in the dictionary have arranged themselves according to the value of the index. Like our dictionary was A, B, and C, but when we wrote the index, we said C, A, D, B. We changed the order, and the values of the dictionary assigned themselves according to the order. And D was not in the dictionary, so D is displayed as not number. Very good. So by default you will get this type of listing, and if you mention the index like that, so because we have already said that the key part of the dictionary act as a index, so that's how the things are working in a dictionary. So let's move back to the data frame. So this is we have the second data structure is data frame. So this is a two-dimensional data structure, just like any table with rows and columns. So what are the basic features are there? Columns may be of different data types. So you can see here the columns are of different data types. Size can be changed. Series में था कि size was immutable. Here you can change the size. Label axis, so you can label the rows as well as the columns. Arithmetic operations on rows and columns. So these are the few features of the data frame. So you can create a data frame from a list, from a dictionary, from series, from NumPy, n-dimensional arrays, and from another data frame. So you can create a data frame from an existing data frame also. So let us look at this is the first example is of a empty data frame. This is a data frame based on the list. ठीक है, तो list में you can see in the output on the right hand side, this is, so these are the values of the data frame, and 0 1 2 3 4 5, these are the index values. Then you have a second example is there, this is called list within a list. Clear? So the here what we have did, we have represented the data, and column names we have given mentioned two columns, name and age. So name will become the column of all these names, and the age will become the column heading of this age. Okay, so let's please iski practice जरूर करना आप लोग. So you can see this is the representation is given, the numeric write below for the value as float. तो अगर हम इसकी डाटा टाइप को फ्लोट मेंशन कर देंगे, just try to implement this one. Okay, and let's say we have
डाटा फ्रेम इज इक्वल टू इसको कोर्स में लिखना होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, जस्ट रन दिस वन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज देयर कि एक आप लोगों के जो हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो उसका एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए हमने क्या किया है, कॉपी पे नोट कर लो, ऑन 10th of September देयर विल बी ऑनलाइन टेस्ट। 10 आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे 10 तक। लास्ट पेपर किस दिन है? यस, वंशिका कौन सा है लास्ट पेपर, किस डेट को है? पता नहीं है? यस हर्षिता, यस 8th को है, 8th को है। तो ठीक है, 10th को रखा है हमने ऑनलाइन पेपर। ठीक है, उसमें 15 मार्क्स का पेपर है, 4 बजे शुरू हुआ, 4 to 5। उसमें 2 प्रोग्राम हो गए पाइथन बेस्ड। 2 में से एक प्रोग्राम आप लोगों ने रन करना है, चाहे आप कॉपी पे रन कर दो, चाहे आप सिस्टम पे रन कर दो, और साथ में उसकी आउटपुट भी लिखनी है आप लोगों ने, बट एवर द आउटपुट इज कमिंग। ठीक है, नंबर 2 क्या करना है आप लोगों ने कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका 1 पेज का सिनॉप्सिस लिखना है आप लोग। 5 मार्क्स का सिनॉप्सिस है, 10 मार्क्स का प्रोग्राम है। 4 to 5 आफ्टर योर एग्जाम्स ऑन 10th of September। क्लियर है? ऑनलाइन पेपर होगा ये, और एक फाइल आप लोगों ने अपलोड करनी है सिनॉप्सिस के लिए, एक फाइल अपलोड करनी है प्रोग्राम के लिए। कोई क्वेश्चन है इसमें तो बता दो। ठीक है, टॉपिक के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन योर टॉपिक। यस वंशिका। सर सिनॉप्सिस कैसे लिखना है? सिनॉप्सिस जो भी आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है एंड हाउ यू आर, थोड़ी सी उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है कि कैसे आप इसको विजुअलाइज कर रहे हो, कैसे आप इसको करोगे। ठीक है, बस अब मैं बता रहा हूं, उसमें आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक पेज के अंदर अंदर डिफाइन कर दो। जैसे आप दुकानदार की बिलिंग के लिए कर रहे हो तो आप मेंशन कर दो कि आई एम यूजिंग पांडास कि ये फंक्शन को यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी शॉपकीपर है उसके लिए जितने भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसकी बिलिंग का मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके वट एवर यूर प्रपोज्ड वे इज देयर, वो मेंशन करना है अपना। आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट लिखना है 1 पेज का। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जस्ट प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि आप किस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, दैट्स ऑल। उस प्रॉब्लम के बारे में हल्का फुल्का लिखना है, कोई कोडिंग वगैरह नहीं रिक्वायर्ड है इसमें। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को किसी को भी किसी पॉइंट पे भी डाउट आती है, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क दी क्वेरी। सो कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया? अब मेरे क्या है, ए जो है वो फ्रैक्शंस में आनी शुरू होगी। ठीक है, जब मैंने ये मेंशन नहीं किया था, इसको अगर मैं उड़ा दूंगा तो मेरी एज जो है वो इंटीजर में आ रही है, और अगर मैं यहाँ पे 3rd पैरामीटर मेंशन कर देता हूँ
डी डाटा टाइप इज इक्वल टू फ्लोट, तो वैल्यू कैसे आ जाएंगी, फ्रैक्शन में आ जाएंगी एज वाली। तो ये थोड़ा मेरे को लगा था इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू स्ट्रेस दिस पॉइंट। ठीक है, बेस्ट वे टू लर्न ऑल दीज थिंग इज, प्लीज इन चीजों को बस क्लास अटेंड करके ना करो, थोड़ा इनको प्रैक्टिकली करोगे, सो देन यू विल बी कंफर्टेबल। और मैंने कल आप लोगों को वेबसाइट बताई थी, उस तरह की वेबसाइट आप लोग देखो। सो आई विल जस्ट शो यू द वेबसाइट अगेन। दिस इज द बेसिक पाइथन क्विज फॉर बिगिनर्स। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। प्लीज टेस्ट यूर सेल्फ ऑन सर्टन एमसीक्यू। अगर आपके पास कोई वाइटल रिसोर्स मिलता है, सो माय रिक्वेस्ट इज, अगर आपको कोई अच्छी वेबसाइट मिलती है तो प्लीज शेयर इन दी क्लास, बिकॉज अभी हमारे पास ना तो मेरे पास कोई ऐसी रेपोजिटरी है जिसके अंदर कोई 200-300 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। क्लियर? तो आप भी एक्सप्लोर करो, और अगर आप लोगों को कोई अच्छी वेबसाइट मिलती है जहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चन पड़े हुए हैं विच आर हेल्पफुल टू अस, सो प्लीज शेयर इन दी क्लास, या मेरे को व्हाट्सएप कर दो, एक काम कर देना, ठीक है जी। यशवंशी का कोई और पॉइंट? सर से जब हमने उसमें डाटा टाइप फ्लोट लिखा, तो सर जो नेम था वो स्ट्रिंग में था, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं की उसमें? नहीं नहीं देखो, एक सिंपल सी चीज है, नो दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट सॉर्ट ऑफ ए सिस्टम इज, ठीक है। देखो नेम को, दिस इज इंटेलिजेंट सिस्टम, ये सिर्फ डाटा टाइप जो है वो आप देखो ये नंबर्स के ऊपर इफेक्ट करेगी, ये कभी भी फ्लोट को कुछ नहीं करेगा, ये सॉरी ये स्ट्रिंग को कुछ नहीं करेगा ये। अब स्ट्रिंग थोड़ी नवदीप पॉइंट 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है। अगर इसमें नंबर नहीं होते तो इसने कुछ नहीं करना था। अगर आप यहाँ पे एज की जगह कुछ और कर दो, आप इसको ABC कर दो, लेट्स से दिस इज A, ठीक है। अगर वो नंबर मिलेगा उसको, वो नंबर को ही फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, वो किसी और चीज को फ्लोट में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। ये तो बिल्ट इन मैकेनिज्म ही है हमारे पास, ठीक है। फिर ये नॉर्मली चलेगा, फिर ये डाटा टाइप का कोई काम नहीं होगा। बट अगर इसको कोई नंबर वैल्यू मिलेगी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 56 कर दिया, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो सभी को वो ऐसे ले रहा है, अभी फ्लोट ही ले रहा है। क्लियर? सो देन इट विल, कुछ इसमें को बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट ए पॉइंट यू विल गेट फेमिलियर इफ यू बी यूजिंग दिस कोड अगेन एंड अगेन, ठीक है। नेक्स्ट इज ए डाटा फ्रेम फ्रॉम ए डिक्शनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज वी हैव टू यूज द डिक्शनरी इन ए, काफी ज्यादा हमें यूज करना पड़ेगा डिक्शनरी के बारे में। क्लियर? सो दिस की विल बिकम द कॉलम हेडिंग and this list will become the values of a particular column heading, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रैक्टिस ऑन दीज पॉइंट्स, ये देखने में बड़ा इजी है डाटा, एंड लेट्स से वी मेक ए डिक्शनरी, ताकि इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बनाना आ जाएगा सर। Okay, and let's say we take the second parameter as marks. Okay, and just convert into data frame. Okay, so one point we are left print. So you are getting, this is the keys are acting as a column heading. So this is the normalized 0, 1, 2, 3 as the index values. So these are the values. Clear? So this is, we have created a,
created a data frame from a dictionary. ठीक है, तो हम इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू भी अपनी साइड से दे सकते हैं इसके। तो अगर मैं इसके अंदर खुद मेंशन करता हूं इंडेक्स, तो लाइक यू सी हियर, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू clear. Now this 0 1 2 3 0 1 2 will be replaced with first, second and third. So these are very elementary example, at least their clarity should be there to everyone. So this is the data frame from list of dictionaries. So single list containing 2 dictionaries. So first all the elements of the dictionary will be there, then all the elements of the second dictionary will be there as a second row. तो पहली डिक्शनरी जो है वो फर्स्ट रो बन जाएगी, जो दूसरी डिक्शनरी है वो सेकंड रो बन जाएगी, अगर तीसरी डिक्शनरी होती तो दिस शुड हैव बिकम द थर्ड रो. Similarly, you find here the index or the index are placed here. This is the dictionary. A dictionary is created with the series, and then that dictionary has been converted into a data frame. So this is a key, and the key will become the heading. This is the code for to make a series. तो सीरीज के अंदर क्या है, ये सीरीज की वैल्यूज है, ये सीरीज का इंडेक्स है, ये सीरीज की वैल्यू है, ये सीरीज का इंडेक्स है, और बाद में वो क्या किया, एक डाटा फ्रेम बनाया हमने. तो आपको पता है फर्स्ट सीरीज में एक वैल्यू कम है, तो दैट्स वाई डी के फ्रंट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट सीरीज इज हैविंग 3 वैल्यूज, सेकंड सीरीज इज हैविंग 4 वैल्यूज. ठीक है जी. नेक्स्ट वी हैव क्रिएटेड डाटा फ्रेम फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल. अभी छोड़ दो आप इसको, CSV वाले को भी छोड़ दो, बिकॉज प्रैक्टिकली यू विल नॉट फाइंड सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस. ठीक है, इसको बाद में कर लेते हैं. सो देन दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू गो फॉर कॉलम डिलीशन एंड कॉलम एडिशन. ठीक है, तो चलो भी ठीक है. यस, हर्षिता आप बताओ, वेयर इज हर्षिता? हर्षिता, आर यू देयर? Yes, sir. हर्षिता, इसमें एक कॉलम ऐड करना है, बताओ क्या कोड लिखूंगा मैं उसका? चलो मैं एक बार यहाँ से हिंट लो, आप टेक ए हिंट फ्रॉम दिस. यहाँ से हिंट लो और मेरे को बताओ कि अपने प्रोग्राम में हमने कैसे कॉलम ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना. नोट कर लिया? कोई भी एक नया कॉलम ऐड कर दो. जैसे क्या करोगे आप ऐड? ठीक है, सब्जेक्ट ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो आप, व्हाटएवर यू वांट. रोल नंबर कर दो. Sir, first we will create a dictionary. फिर से डिक्शनरी क्रिएट Key करनी? will- Yes, sir. First we will create a dictionary with roll number and the roll number values. Then we will choose a data, name the data frame, then the new dictionary. Then we'll assign values to new column. चलो, रोल नंबर हमने बना दिया और उसमें मैंने वैल्यू डाल दी 1 2 3. अब बताओ इसको
इसको ऐड कैसे करना है इनटू द एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम? Sir, DF data Hmm. frame in brackets we'll write fourth index. फोर्थ क्या है? अच्छा, मैं तो कॉलम ऐड की बात कर रहा हूँ बेटा, ये रोड थोड़ी ऐड करनी है, फोर्थ की बात कर रहे हैं। चलो छोड़ो। यस मुस्कान, आप बताओ मुस्कान। सर DF डाटा 1। डीएफ ब्रैकेट में लिखूं डाटा 1 ऐसे? नो सर, DF रोल नंबर इक्वल टू डाटा 1। मेरे हिसाब से कॉलम को ऐड करने के लिए वी शुड नॉट हैव गॉन विद डिक्शनरी। अब डिक्शनरी को जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस लाइन को आप रहने दो, दिस इज बेसिकली कंफ्यूजिंग थिंग्स। ठीक है, जैसे आप कुछ भी ले लो, वी से दैट सी इज इक्वल टू, एक लिस्ट ले लें हम 1 2 3, और रोल नंबर हमारा क्या हो गया, कॉलम का नाम हो गया, और इसको मैं असाइन कर दूं जस्ट द वेरिएबल सी, जस्ट सी दिस। ठीक है जी, क्लियर है? डिक्शनरी के बाद जब हमें कॉलम ऐड करना है तो फिर से नई डिक्शनरी नहीं बनानी। एक डिक्शनरी बन गई है, उस डिक्शनरी को हमने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। अब जब भी हमने नया कॉलम ऐड करना है तो हमें डिक्शनरी नहीं चाहिए, हमें लिस्ट से काम चल जाएगा। मोस्टली वी यूज इट टू ऐड ए कॉलम में हम एक लिस्ट का यूज करते हैं। क्लियर? सो प्लीज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट इज प्लीज इंप्लीमेंट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्लीज वर्क ऑन हाउ टू डिलीट ए कॉलम एंड हाउ टू रीनेम ए कॉलम। यहां तक आप इंप्लीमेंट करो आज, एंड डू ऑल दिस क्वेश्चंस प्रैक्टिकली। ठीक है, जितना आप कोड के साथ फेमिलियर हो गए, दैट इज उतना ही आपको पाइथन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप लोगों। कोई और क्वेरी है आप लोगों की? एनी क्वेश्चन यू हैव? ठीक है, याद रखना दैट इज ऑन 10th of December, और 10th of not December but September, on 10th of September you will have the half yearly। और मेरे को भी याद करवा देना, यू नो ऐसे स्किप हो जाएगा, मेरे को भी भूल जाएगा ये। क्लियर? सो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कंपोनेंट है आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम का प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। तो जितने मार्क्स आप लोगों के आएंगे वो 30 में से डबल हो जाएंगे। अगर आप 15 में से आपके 14 आ गए, तो जब आपका वो जब आप लोगों की वो मार्क लिस्ट आएगी ना, तो उसमें वो डबल होके वो कंपोनेंट लग जाएगा। 5 मार्क्स हैं आपके सिनॉप्सिस के, और 10 मार्क्स हैं आप लोगों के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम कहाँ से आएगा? मोस्टली आप जो आपकी प्रैक्टिकल की लिस्ट है उसमें जो प्रोग्राम दिए हुए हैं, प्लीज फोकस ऑन दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।